आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। पंजाब के डेरा बाबा नानक में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद अगरचे बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की, जिसके बाद ही ड्रोन पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ वापस चला गया। ड्रोन देखे जाने के बाद बीएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बीएसएफ जराये का कहना है कि सुबह करीब 4:40 पर बीओपी आबाद के करीब बीएसएफ एहलकारों की 10 बटालियन ने पाकिस्तानी ड्रोन की आवाज सुनी। बीएसएफ एहलकारों के जरिए इस ड्रोन पर तकरीबन 7 राउंड फायर किए गए हैं, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। इस वाक़े के बाद बीएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और साथ ही इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वजारत बराए उमूर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि किसी भी कीमत पर सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, कोई भी सवाल हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि कतर में वज़ीर खारजा की जानिब से अफगानिस्तान में पायदार अमन की बहाली को लेकर बात हुई है, जबकि भारत सभी हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है। Look, I will only say that the Union Territory of Jammu and Kashmir is an integral part of India. No amount of questioning can change this reality. Also, cross-border terrorism is unacceptable, and no amount of justification can make it acceptable. Look, these are routine administrative matters. I understand both sides cleared all pending assignment visas yesterday. Look, EM recently visited both Kuwait and Kenya. During these visits, he transited Qatar, and during these transits, he met with his Qatari counterpart as well as the senior members of the Qatari leadership. As Qatar is involved in the Afghanistan peace process, the issue of Afghanistan was also discussed during EM's conversations. US Special Representative for Afghanistan Reconciliation, Zalmay Khalilzad, happened to be in Doha during this period of EM's visit and called on EM to brief him on the recent developments regarding Afghanistan. We have seen the news reports relating to the Review and Reconsideration Bill 2020 that has been passed by the National Assembly of Pakistan. The bill codifies into law the earlier ordinance, frankly with all its shortcomings. It does not create a machinery to facilitate effective review and reconsideration of Sri Jadav's case as mandated by the judgment of the International Court of Justice. The ICJ had ruled that Pakistan was in breach of its international obligation because of the failure to provide consular access to Sri Jadav. The ordinance, and now the bill, invites the municipal courts in Pakistan to decide whether or not any prejudice has been caused to Sri Jadav on account of the failure to provide
consular access. This is clearly breach of the basic tenet that municipal courts cannot be the arbiter of whether a state has fulfilled its obligations under international law. Not only this, it further invites the municipal court to sit in appeal, as it were, over the judgment of the ICJ. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address the shortcomings in the bill, to comply with the judgment of the ICJ in letter. अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि पानी की किल्लत और खुश्क साली कोरोना वायरस के मुकाबले में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आलमी दर्ज हरारत में इजाफे से खतरात बढ़ रहे हैं। कुदरती आफात के खतरात के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे खुसूसी मामी मीज़ो तोरी ने खुश्क साली आइंदा की वबा के तौर पर बढ़ाने में उन्होंने कहा कि इससे आलमी वबा पर भी खतरात हो सकते और इसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शाया की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1998 से 2017 तक खुश्क साली से 124 अरब डॉलर का माशी नुकसान हुआ, जबकि इससे 1.5 अरब अफराद मुतासिर हुए हैं। ताहम उनका कहना है कि ज्यादा इम्कान है कि एदाद शुमार भी हकीकी एदाद शुमार से कम है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग ने जनूबी यूरोप और मगरबी अफ्रीका में खुश्क साली के अमल को तेज कर दिया है। अगर दुनिया ने कोई कदम न उठाया तो खुश्क साली से मुतासर अफराद की तादाद में ड्रामाई तौर पर इजाफा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रवां बरस 130 ममालिक खुश्क साली के बड़े खतरे का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के 23 ममालिक को आबादी में इजाफे की वजह से पानी की कमी का सामना होगा, जबकि 38 ममालिक को पानी की किल्लत और खुश्क साली दोनों के खतरे का सामना करना पड़ेगा। मामी मीज़ो तोरी का कहना है कि खुश्क साली वायरस की तरह से जो कि तवील अरसे तक रहेगी, इसके वसी आलमी असरात होंगे और नुकसानात का बायस भी बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा जाहिर किया है कि बरअज़्म अफ्रीका के वसी इलाके वस्ती और जनूबी अमरीका, वस्ती एशिया, जनूबी यूरोप, मैक्सिको और अमरीका में ज़्यादा और तेज़ी से खुश्क साली आ सकती है। एक और स्टडी के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से होने वाली खुश्क साली के बायस रवां सदी के वस्त में यूरोपीय यूनियन की 40% ज़री दरामदात शदीद मुतासिर हो सकती है। हम आपको सीधा चलते हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त आवाम से खिताब कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। विशेष अवसर आपको उपलब्ध हो रहा है। इस पवित्र कार्य के लिए, मानव सेवा के कार्य के लिए ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे। आप जल्द से जल्द इस कोर्स का हर बारीकी को सीखें, अपने आप को उत्तम व्यक्ति बनाने का प्रयास करें। आपके पास वो स्किल हो जो हर किसी की जिंदगी बचाने के काम आए। इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वज़ीर आज़म जो फ्रंट लाइन वर्कर्स कोविड आलमी वबा की सूरत हाल के दौरान जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनसे वर्चुअली तौर पर उन्हें मुबारकबाद पेश करें। जिस तरह से उन्होंने मुल्क के अंदर या कोरोना वायरस के दौरान जो काम किया है उस पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि नोवल कोरोना वायरस की भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट अब तक 80 ममालिक में फैल चुकी है। WHO में कोविड-19 से मुत्तलिक तकनीकी टीम की सरबराह का कहना है कि मारिया वेरिएंट समेत कोरोना वायरस की 4 नई अकसाम असल कोविड-19 वायरस के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैलने की सलाहियत रखती है। वाज़ेह रहे कि नोवल कोरोना वायरस की भारतीय किस्म जिसे डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया है, पिछले साल भारत से फैलना शुरू हुई थी। इस किस्म को भारत में कोरोना वायरस की हालिया और तीसरी लहर की वजह भी करार दिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट जिस तेजी से फैल रहा है उसे देखते हुए खतरा है कि अगर एहतियाती तदाबीर जारी न रखी गई तो यह जल्द ही पूरी दुनिया में फैल सकती है। अगर ये ज्यादा आसानी से फैल सकता तो ज्यादा लोग भी इससे तेजी के साथ मुतासिर हो सकते हैं और अगर निज़ाम पर दबाव बढ़ता रहा तो ये सेहत से मुतल्लिक निज़ाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त का बायस बन सकता है। ताम अच्छी खबर यह भी है कि मौजूदा कोरोना वायरस
वैक्सीन इस डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी मुअस्सर है, लिहाजा बेहतर यही है कि जब तक ये वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वैक्सीनेशन के साथ साथ एहतियात भी जारी रखी जाए। कोरोना वायरस की वबा से हलाकतों की तादाद 40 लाख से तजावुज कर गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से 20 लाख अफराद की हलाकतों में 1 साल का अरसा लगा, जबकि दीगर 20 लाख अफराद सिर्फ 166 दिनों में हलाक हुए हैं। अमरीका और बरतानिया जैसे ममालिक में कोरोना वायरस के नए केसेज और अमवात की तादाद कम हो गई है, लेकिन अब भी मुतअद्दिद ममालिक को कोरोना वैक्सीन की कमी का सामना है। भारत में भी कई हफ्तों से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असरात मुसलसल कम हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर हो रही है, जबकि पॉजिटिव केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। ताम शरिया अमवात में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 62,480 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जिसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,67,62,793 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 88,977 मरीज वायरस से शिफाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए और मुल्क में अब तक 2,85,80,647 अफराद कोरोना से शिफाब हो चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है, जिस दौरान मुल्क में फाल केसों की तादाद 7,98,656 पहुंच गई है, जो कि गुज़श्ता 73 दिनों के बाद 8 लाख से कम हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1587 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही मालकून की मजमूई तादाद 3,83,490 पहुंच गई है। श्रीनगर में आज एक और खातून ने दरियाए जहलम में छलांग लगाकर खुदकुशी की है। जिला गांदरबल से रहने वाली एक खातून ने सीमेंट कदल श्रीनगर से दरियाए जहलम में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। खुदकुशी की खबर फैलते ही पुलिस और मकामी लोगों ने लाश बरामद करने की कोशिशें की और करीब 1 घंटे के बाद ही खातून की लाश को शालटंग कमरवारी के नजदीक बरामद की गई है। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई माह से खुदकुशी के वाक़ात में काफ़ी इजाफा हुआ है। जिंदगी में मामूली सी नाकामियों से बचने की वजह से और दीगर मसाइब की वजह से खुदकुशी करना बुज़दिली है। खुदकुशी एक गैर इंसानी मजहबी इक़दार के मनाफी इंतहा दर्जे की बुज़दिली है। इस्लाम समेत दीगर मज़ाहिब भी खुदकुशी को गलत हरकत मानते हैं। अल्लाह ताला ने एक इंसान को तमाम नेमतों से अफजल तरीन नेमत इसकी ज़िंदगी दी है और ये बाकी तमाम नेमतों का असासा है। हम सब की यही जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग बहुत परेशान रहते हों हमें उनको तरतीब करनी, तरबियत देनी चाहिए और माशरे में इस किस्म के आलात को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आज नौजवानों में मंशियात की लत और दीगर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनकी इंतहा आखिरकार खुदकुशी है। हमें समाज में एक जिम्मेदार शहरी होने की वजह से ये जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज में ऐसे हालात को ख़त्म करें और नौजवानों को और ख़ासकर पूरे समाज को खुशहाली की तरफ गामिज़न करें। वस्ती जिला गांदरबल के तुलमुला इलाके में माता खीर भवानी मंदिर में आज से मेला शुरू हो रहा है, जिस दौरान कोविड की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र श्रद्धालुओं की तादाद को महदूद किया गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से श्रद्धालुओं के लिए कोविड के पेश नज़र सभी इंतजामात किए गए हैं और आने वाले श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है कि वह SOPs का खास ख्याल रखें। आज अष्टमी मनाई जा रही है यहाँ पे जिसका मतलब ये यहाँ पे हमारा खीर भवानी माता का जो बड़ा दिन होता है आज जन्मदिन है। इसमें जो कि कोविड की सिचुएशन है तो इसकी वजह से हमारा ज़्यादा इस पे जो रौनक होती थी वो नहीं हुई है। जैसे लास्ट ईयर भी देखा था आपने तो सब बंद ही था। इस बार कोविड की वजह से ज़्यादा तो यात्री नहीं आए हैं, पर थोड़े बहुत जो दिख रहे हैं यहाँ पे उसमें सबका सपोर्ट अच्छा सा रहा है। सारा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है। हमने भी अपनी तरफ से धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से हमने पूरे इंतजाम अपनी तरफ से किए हैं और लोकल्स का भी यहाँ पे हमको सपोर्ट मिला है। हमारा काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही है यहाँ पे। जो भी यहाँ पे अभी आप इंतजाम देख रहे हैं ये सारा हम मिलजुल के ही कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहा है।
जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे निभाए जा रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि लोगों में ज़्यादा उत्साह है। हालांकि लोगों की चहल पहल बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन उत्साह बहुत ज़्यादा है। और हम माता रानी से यही उम्मीद करेंगे कि अगले साल ये कोविड की जो सिचुएशन है ये सारी खत्म हो जाए और एक भव्य प्रोग्राम यहाँ पे किया। सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम जिले गांधरबल के तुलमुला इलाके से हूँ। आज बेहद यहाँ पे खुशी का माहौल फिर से लौटने को आया, मिलने को देखने को मिला कि जब कश्मीरी पंडित बरादरी मुसलमान लोगों के साथ मिल रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, खुशी बांट रहे हैं। ये मेला इम्पॉसिबल है जब तक न लोकल लोग का साथ होगी, लोकल की कंट्रीब्यूशन होगी, लोगों का प्यार होगा, मिलन होगा, भाईचारा होगा। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि अंडर द प्रॉपर गाइडलाइंस SOPs इस बार ये मेले का इनेका किया जाएगा। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले जो भी यात्री हैं उनको मुबारकबादी देना चाहूँगा जिला इंतजामिया की ओर से। आज हमारे यहाँ पर ये कश्मीरी पंडितों का पूरे साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल माता खीर भवानी का जी अष्टमी का होता है। और मैं बिल्कुल बचपन से जब मैं पैदा हुआ था तब से इसको हर अष्टमी में आता रहा हूँ। और आज मैं कल रात को 8 बजे के करीब यहाँ पर आया हूँ। 10-15 लोग थे, कोविड की वजह से बहुत कम आया हूँ। तो पूरी रात हर साल हम इसकी वाटर में के जो कलर है, इस चश्मे का जो कलर है उससे उसकी सिग्निफिकेंस लेते हैं कि किसमें उसमें कभी अगर थोड़ा कलर डिफरेंट हो जाता तो वी अंडरस्टैंड नॉट ओनली कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी मुस्लिम्स यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन इस बार जो मैंने देखा है, मैं कल रात से आज तक नहीं सोया हूँ, 8 बजे से अभी तक खड़ा हूँ। मैं सो नहीं पाया, मैं सिर्फ कलर को देखने को। ये कलर मैंने 30-32 साल पहले इस चश्मे का ऐसा कलर देखा और मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि इस कलर को ऐसे कल रात को माता खीर भवानी मंदिर में आज से मेला शुरू हो रहा है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास। सलीम, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? मेला शुरू हो रहा है और कोविड-19 की वजह से अगरचे तादाद जो है वो महदूद की गई है, तो कितने श्रद्धालु इस वक्त जो है मंदिर पहुंचे हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे किस तरह के इंतजामात वहां पर इंतजामी की जानिब से किए गए हैं? देखो गौर, जो इस टाइम खीर भवानी मेला चल रहा है, इस बार जो काफी कम तादाद में श्रद्धालु आए हैं कि यहाँ पे कोविड का भी ख्याल रखा गया है और पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इंतजाम किए हैं, प्रोटोकॉल किया है, इसके जो कोविड का चल रहा है उसका भी खास ख्याल रखा जाता है। और जो दूर मुल्क से आते थे आज वो नहीं आए हैं। खाली मुझे लगता है कि जम्मू दिल्ली से जो थोड़े से जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनके लिए इंतजाम भी किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और पूरे जो हेड से, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हेड्स हो या डायरेक्टर हेल्थ हो, चाहे कोई भी अफसरान, सब यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी कहने को ये भी कहा है कि LG मनोज सिन्हा साहब भी यहाँ का विजिट करेंगे, अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन ये कहा गया है कि वो आएंगे, यहाँ पे विजिट करेंगे। पूरी तरह से यात्रा चल रही है और पूरी प्रोटोकॉल के अंदर यात्रा चल रही है और अरेंजमेंट भी बड़े अच्छे किए गए हैं। सलीम, जरा ये बताएगा, आपने इन श्रद्धालुओं के साथ बात की है जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है? और साथ ही साथ जो मुसलमान बरादरी वहां पर है उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, जो तुलमुला खीर भवानी का जो रीत रहा है, यहाँ पे जो लोग हैं वो पूरी तरह से पिछले सदियों से आए हैं कि इनको घरों में लेते हैं और 2 दिन पहले इनके जो यहाँ पे लोकल्स हैं उनको घरों में लेते हैं। और उसी तरह आज भी यहाँ के लोकल शाना बशाना चलते हैं इनके जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं। और जो यहाँ के श्रद्धालु भी है काफी खुश नजर आ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हम अपनी धरती पे आए हैं। और जो ये खीर भवानी मेला है ये पहले से ही एक मोहब्बत और शफकत का मेला चल रहा है सदियों से, और आज भी उसी को दिखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो लोकल है इनको एक चीज जरूर मतलब जिससे इनको ठेस पहुंची कि काफी कम तादाद में श्रद्धालु आए हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों का जो मूड मिजाज है वो भी काफी ऑफ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काफी भीड़ भी होती थी और यहाँ के जो रोजगार भी है उस पर भी असर को दिखने को मिल रहा है। लेकिन यात्रा बड़ी अच्छी तरह से चल रही है और अरेंजमेंट भी, अभी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंची है, वो भी जायजा ले रही है। पूरी तरह से यात्रा चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी आपका। ये थे गांधरबल से सलीम वानी जो तफसीलात फराम करे थे, जहां तुलमुला गांधरबल में माता खीर भवानी मेला जो है आज से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में अगरचे कोविड-19 की वजह से इस वक्त जो इस बार
यात्रा या श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो महदूद की गई है। ताम इंतजामिया की जानिब से वहां पर जो है सहूलियात उनके लिए रखी गई हैं और खास इंतजामिया की जानिब से श्रद्धालुओं यात्रियों से अपील की गई है कि वो SOPs का खास ख्याल रखें। सालाना अमरनाथ यात्रा के इनेकाद पर अगरचे अभी तक कोई खत्मी फैसला नहीं लिया गया, ताहम श्राइन बोर्ड जो यात्रा का इंतजाम, यात्रियों की सहूलियत और दीगर मामलात के लिए जिम्मेदार है ने अमरनाथ गुफा जाने वाली दोनों रास्तों पर बुनियादी सहूलियात के साथ साथ ठोस पटरियों की तामीर की तजवीज़ दी है। ताहम बोर्ड मुमकिन तौर पर बालतल रास्ते के जरिए यात्रा के लिए महदूद वक्त मुतय्यन कर सकता है, जिसमें यात्रियों के लिए महदूद तादाद की इजाज़त होगी। ज़राए का कहना है कि बोर्ड वक्त पर खुद गौर खोज कर रहा है ताकि यात्रा का बाज़ाब्ता ऐलान किया जा सके जो बालतल के रास्ते शुरू की जाएगी। यात्रा जाने वाला ट्रैक साफ किया जा रहा है, वहां से बर्फ हटाई जा रही है और हम अपने LG साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अमरनाथ यात्रा चलनी चाहिए और भोले बाबा जी की अगर यात्रा चलेगी तो जल्द से जल्द भोले बाबा जी की कृपा से कोरोना महामारी कम होगी और यही कहना चाहेंगे कि यात्रा चलनी चाहिए। जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि लंगर की व्यवस्था भी जो बड़े अगर यात्रा होगी तो लंगर का जो है वो कम होगा, जो लगाने वाले होंगे तो यात्रा भी कम हो सकती है, क्या कहेंगे इसके? हम यही चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पे लंगर लगाएंगे, जो लोग यात्रा जाएंगे वह अपना पूरी सेफ्टी से जाएं, वैक्सीनेशन लगवा के जाएं, मास्क डाल के जाएं। देखिए, सबसे पहले हम तो ये कहना चाहेंगे कि अमरनाथ यात्रा जब से बंद हुई है, जब से अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में बंद हुई है, तब से जम्मू कश्मीर में जो समस्याएं हैं जो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जब से ये यात्रा रुकी थी तब से ऐसी समस्याएं यहाँ पे उजागर हुई हैं जिसका कोई हल ही नहीं हो रहा है। तो आपके माध्यम से हमने भी देखा है जी, खबरों में सुना कि वहाँ पे ट्रैक साफ हो रहा है, बर्फ हटाई जा रही है, तो एक अच्छी उम्मीद जगी है। हमारे जो LG साहब हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब ट्रैक साफ हुआ है तो हमें उम्मीद है कि ये यात्रा जो है, हम आपके ही माध्यम से LG साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं और सेंटर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अमरनाथ यात्रा जो है वो जल्द से जल्द शुरू कराई जाए। मैं पहले तो धन्यवादी गुलिस्तान चैनल का, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया। बड़ा अच्छा मुद्दा है ये। आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो पूरे वर्ल्ड में वैश्विक महामारी फैली हुई है, उसको देखते हुए प्रशासन जो भी फैसला करे, प्रशासन तो पूरी तैयारी कर रहा है अपनी तरफ से। आपने देखा होगा पिछले दिनों में बालटाल में सफाई चल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर प्रशासन को लगे कि यात्रा करवा सकते हैं तो तभी करवाएं, नहीं तो आम इंसान की जान के साथ ना खेलें। अगर उनको लगता है कि जहाँ पे केसेस कम हो रहे हैं तो यात्रा करवानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था का सवाल है। महकमे वाइल्ड लाइफ ने वस्ती जिला बडगाम के खान साहब इलाके से आज सुबह एक तेंदुआ पकड़ लिया। जराये का कहना है कि मुतलका महकमा की जानिब से खान साहब के इलाका कमलेशपुरा में रिहायशी बस्ती के करीब तेंदुआ घूमने की इतला मिलने के बाद ही महकमा का अमला मौके पर पहुंच गया और बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से जंगली जानवर को दाचीगां पार्क में मुंतकिल किया जा रहा है। याद रहे कि जिला बडगाम में चंद रोज कबल भी एक तेंदुए को जिंदा पकड़ा गया था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आज हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड पहले आलमी टेस्ट चैंपियन फाइनल में टेस्ट क्रिकेट का बादशाह बनने के इरादे से उतरेंगे। इस फाइनल के साथ आलमी टेस्ट चैंपियनशिप की 2 साल के सिलसिले का खात्मा हो जाएगा, जिससे टेस्ट क्रिकेट को नई जिंदगी देने के मकसद के साथ 2019 में शुरू किया गया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल उन्हें आलमी चैंपियन बनने का एक और मौका देती है और कीवी टीम हाल ही में इंग्लैंड से 2 टेस्ट में मैचों की सीरीज 1-0 से जीतने के बाद इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान ने मैच के बाद से कोई टेस्ट नहीं खेला और इसने विराट कोहली की कप्तानी में कोई ICC ट्रॉफी भी नहीं जीती, लेकिन 32 साल विराट को WTC फाइनल की अहमियत का बखूबी पता है। विराट ने कहा कि
टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की खास अहमियत है क्योंकि ये सबसे मुश्किल इस फॉर्मेट में पहली बार मुनक्कद हो रहा है। विराट ने मजीद कहा कि ये फाइनल के दौरान सख्त मेहनत का नतीजा नहीं होगा बल्कि गुज़श्ता 5-6 बरसों की सख्त मेहनत का नतीजा होगा। WTC फाइनल में हिंदुस्तान की शानदार बल्लेबाजी, लाइनअप और न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी का मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।